Hello. So this is the first module of the 12th, and my coverage will be for the school examinations, that is a board exam, as well as for the IIT JEE. So each and every concept will be discussed in good detail. So you see, in the electrostatics, basically the meaning of this word electrostatics is what? It is the electro plus statics. Electro plus statics. So basically what we do here is we deal with the study of static charges. तो हम यहाँ करते क्या हैं? The charges which are stationary, which are not moving, we deal with those charges. So the first of all, the thing becomes, what is a charge? Jैसे now you know charges की proton, electron, positive charge, negative charge and all. But initially when the studies of charges were being developed, what was the charge? What the charge did? How the charge could be observed? Like how can we find that yes, there is somewhere some charge? So in fact it was through some experiments were done in the effect of what is happening there, that was explained on the basis of something charge. So look at this. One of the experiment was we took two glass rods, and these two glass rods, these are two glass rods rubbed with silk cloth. These are rubbed with the silk cloth. When they were suspended side by side, a force of repulsion was observed between them. इनमें क्या था? There was a force of repulsion. There was a force of repulsion. Now see. Another experiment was, these are two ebony wooden rods. These are two ebony wooden rods rubbed with cat fur. In this case, a force of attraction was observed. In this case also, a force of repulsion was observed. But when one glass rod rubbed with the silk cloth and another, the ebony wooden rod rubbed with the cat fur, they were suspended side by side, a force of attraction was observed. तो ऑब्जर्व क्या किया गया? There was a force of attraction. So you'll see this. These two glass rods, they are of same material. They have been rubbed with the same cloth. So whatever will happen, the same thing will happen with them. वही चीज़ यहाँ पे भी क्यों है? Both the glass rods are what? Ebonite wooden rods. They have been rubbed with the cat fur, and दोनों का material same है. Both the things have been rubbed with the cat fur. So whatever will happen, same thing will happen with both the things. And in this case, there is a force of repulsion. In this case also, there is a force of repulsion. So the one important thing was that, like in the 11th class, you did the gravitational force. You know, gravitational force is essentially what? It's an attractive force. और साथ में क्या है कि अगर मान लो इस तरीके से आप कोई हाफ के जी या 1 kg की rods, if you suspended side by side, तो the attractive force was not strong enough so that you can see that. वो आपको दिखाई नहीं देता कि दोनों rods एक दूसरे की तरफ जा रही हैं. That was not such a prominent force. And this force is a prominent force. When you suspend these rods side by side, you can clearly see that the rods are being repelled. They are going away from each other. Here also.
तो एक तो दिस फोर्स इज वेरी प्रोमिनेंट फोर्स, मच प्रोमिनेंट कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो भी हुआ इनमें दोनों के साथ एक जैसा हुआ, इनमें भी एक जैसा हुआ, और जब एक जैसा हुआ तो वो रिपेल करने लग गए। और हमने क्या बोला कि क्या हुआ, किस वजह से रिपेल करने लग गए, दैट रीज़न या वो वजह जो है उसका नाम हमने क्या दिया, चार्ज। हमने बोला कि ये रॉड चार्ज्ड हो गई, इसमें एक चार्ज डेवलप हो गया। दूसरी ओर इस एक्सपेरिमेंट में वन रॉड वॉज ऑफ ग्लास रॉड ड्रब्ड विद सिल्क क्लॉथ एंड द अदर वॉज एबोनाइट वुडन रॉड ड्रब्ड विद द कैट फर। इन्हें पास में किया तो अट्रैक्शन आया। इसका मतलब कि जब वो जो चीज़ डेवलप होती दोनों में एक जैसी डेवलप हुई तो रिपल्सन, एक जैसी डेवलप हुई रिपल्सन। अगर मान लो कि इसमें जो चीज़ डेवलप होती वही इसमें भी डेवलप होती तो यहाँ पे भी रिपल्सन होता। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन नहीं हुआ, यहाँ अट्रैक्शन हुआ। दैट मीन्स कि व्हाट वाज डेवलप्ड ऑन दिस रॉड वाज डिफरेंट देन व्हाट इज डेवलप्ड ऑन दिस रॉड। इसमें जो डेवलप हुआ वो डिफरेंट था और इसमें जो डेवलप हुआ वो डिफरेंट था। तो पहली चीज़ की वॉट एवर इज द कॉज ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन, हमने उसे डिफाइन किया, हमने उसे चार्ज डिफाइन किया। ठीक है ना। तो अगर मान लो कि मैं चार्ज को डिफाइन करूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, सो आई कैन से व्हाट कि बाय रबिंग समथिंग इज डेवलप्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स बाय विच दे रिपेल और अट्रैक्ट सिमिलरली प्रोसेस्ड अदर ऑब्जेक्ट्स। वही यहां हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमने डिफाइन किया। इट्स अ वेरी क्रूड एंड फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ चार्ज। दैट इज व्हाट when the objects are rubbed with something and they are brought in contact, they are brought nearer to the similarly processed other objects, they repel or attract each other. And the cause of this, what was developed on the objects is what? It is a charge. जो उसका cause है, जो चीज़ में develop हुई, that is what? That is the charge. आप समझ गए ना? So now see, ये तो चार्ज की एक बेसिक डेफिनेशन हुई कि चीज़ों में रबिंग से जो चीज़ डेवलप होती है और जिसकी वजह से वो सिमिलरली प्रोसेस्ड दूसरे ऑब्जेक्ट्स को रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट चार्ज। ठीक है, मैं एक बार इसे लिख देता हूँ चार्ज, फिर आई गेट बैक टू दिस पॉइंट। ठीक है, आपने ये एक्सपेरिमेंट नोट कर लिए होंगे। नाउ से मैं इसे चार्ज की डेफिनेशन लिख देता हूँ कि चार्ज दिस व्हाट समथिंग which is developed on the objects by the process of rubbing and due to which they repel and attract, repel or attract similarly processed other objects। ठीक ना। और एक चीज़ तुम्हें ध्यान क्या रखनी है इन द लर्निंग, physics is something like what in physics there are some phenomenons. So if you understand the phenomenon, there is no much need of mugging up the definitions. Obviously definition has to be in the very concrete words. So once you go through those concrete words, you'll remember. If you understand the phenomenon, it will be very easy for you to remember that definition. So one part is the definitions, the phenomenons, the fundamental laws, and really the understanding of those laws up to that level that you realize them. What the law is for, what thing can be derived through it, what in nature we are discovering and where it can be applied. And second thing is what? It's mathematical part. So even sometimes the mathematical part is also, it's a complicated part. Like the phenomenon you write in the form of an equation, then by the processing of that equation we get the different results. And that is what is more needed in the exams like IIT JEE, NEET, etc. What you need is, it's not only by definition, by the only understanding of definition, definitely you cannot get the results, you cannot get the solutions. They'll come by what? If you know the phenomenon exactly, you can formulate the given phenomenon in the form of an equation. Then one more thing, by solving that equation you can get the solution. So you see, we've proceed further. तो आपको चार्ज की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स समझ में आ गई।
अब इसे देखो, एक चीज़ और भी क्लियर हुई, जो जिस चीज़ को हमने चार्ज डिफाइन किया, ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो ग्लास रॉड के पास डेवलप हुआ और जो एबोनाइट रॉड के पास डेवलप हुआ, देवर टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेस। अगर सेम होते तो उन्होंने भी रिपेल किया होता। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला, सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड dissimilar charges attract। ठीक है, सिमिलर चार्ज रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। अब एक चीज़ ये देखो कि ये कैसे पता लगे कि चार्जेस जो एक एबोनाइट पे डेवलप हुआ और एक जो ग्लास रॉड पे डेवलप हुआ, दुनिया में वही दो चार्जेस हैं, तीसरा चार्ज नहीं है। और अभी हमने पॉजिटिव नेगेटिव ये ऐसा कुछ नाम नहीं रखा है, बट ये कैसे पता हो कि केवल वही दो चार्जेस हैं और नहीं हैं? ठीक है ना। वैसे जो स्टार्टिंग में इसका नॉमेनक्लेचर किया गया था, दैट वाज व्हाट, जो चार्ज ग्लास रॉड के पास डेवलप हुआ था व्हेन इट वाज रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, उसका नाम रखा गया था विट्रस। विट्रस जो है कि लैटिन वर्ड है, तो विट्रस का नाम होता है रिलेटेड टू द लाइफ। ठीक है, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू द लाइफ, इसका नाम रखा गया विट्रस। इनफैक्ट ये जो विट्रस रखा गया वो जैसे स्टार्टिंग वाज नॉट फ्रॉम हियर, जो चार्ज एबोनाइट रॉड के पास था रब्ड विद द कैट फर, उसका नाम रखा गया था, उसका जो नाम था दैट वाज रेजिनस, उसका नाम था रेजिनस, RESINOUS, रेजिनस। उसका नाम रेजिनस क्यों रखा गया, वो बहुत ही स्पेसिफिक था। मतलब वो एक्सपेरिमेंट एबोनाइट रॉड के साथ किया गया, दैट वाज रब्ड विद द कैट फर। एबोनाइट रॉड में एक केमिकल होता कॉल्ड रेजिन, सो इट वाज थॉट इनिशियल कि प्रोबेबली ये चार्ज उन्हीं पे डेवलप होगा जिन चीज़ों के पास रेजिन होता है, तो उसका नाम क्या था गया, रेजिनस। एंड रेजिन इज ए पॉइजनस केमिकल, सो पॉइजन इज रिलेटेड टू व्हाट, डेथ। पॉइजन इज रिलेटेड टू डेथ, तो उसका जो ऑपोजिट हुआ दैट इज रिलेटेड टू लाइफ, एंड रिलेटेड टू लाइफ के लिए लैटिन वर्ड है विट्रस। तो जो इसका नाम रख दिया गया, जो ग्लास रॉड के ऊपर था, ग्लास रॉड वाला जो चार्ज था रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ, दैट वाज विट्रस। और जो एबोनाइट रॉड के ऊपर था, चेन एबोनी वुडन रॉड के ऊपर था, उसका नाम क्या रख दिया गया, रेजिनस। लेटर ऑन फिर ये हुआ कि नहीं, ये ग्लास रॉड के ऊपर ही इस टाइप का चार्ज डेवलप हो जाता है और इस रॉड के ऊपर इस टाइप का चार्ज डेवलप हो जाता है, डिपेंड करता आपने रबिंग किस चीज़ से की है। तो बाद में सोचा गया कि नो, इट्स नॉट कि वो किसी मटेरियल के इस तरीके से केवल एक मटेरियल पे बेस्ड है, सो इसका नाम एक आर्बिट्ररी रख दिया गया कि इसका नाम रख दिया गया पॉजिटिव और इसका नाम रख दिया गया नेगेटिव। एंड रिमेंबर, जब ये नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखे गए उस टाइम पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके पहले इसका नाम पॉजिटिव रख दिया गया था और इसका नाम नेगेटिव रख दिया गया था। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ कि हाउ कैन यू प्रूव दैट देर आर ओनली दीज टू काइंड ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज, और तीसरे टाइप का चार्ज नहीं होता है। लुक एट दिस, आपने क्या किया, एक ग्लास रॉड ली, वही जिसे रब कर चुके हैं किससे, रब विद द सिल्क क्लॉथ। ठीक है ना, दिस इज द ग्लास रॉड रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। और एक आपने इससे दूर, मतलब इनमें इंटरेक्शन ना हो इतनी दूर, इनमें आपस में कोई फोर्स ना लगे, हमने एक ये रॉड ली, एबोनी वुडन रॉड रब्ड विद कैट फर। ठीक है, इन्हें दूर दूर सस्पेंड कर दिया सो दैट कि इनमें कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है। अब क्या किया, दुनिया की कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से रब करके बारी बारी से दोनों के पास ले गए, इसके पास ले गए तो देखा कि अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ, इसके पास ले गए और देखा अट्रैक्शन हुआ, रिपल्सन हुआ। तो किसी भी केस में वी नेवर फाउंड दैट कि इससे भी अट्रैक्शन हुआ और इससे भी अट्रैक्शन हुआ। अभी इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे इट हैज बीन प्रूव्ड दैट these two have different type of charges. Now see the third material with whatever it was rubbed with, if that would have attracted this as well as this,
then that would have been different from this and different from this. That means that would have been what? Third kind of charge. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से रब किया, इसके पास ले गए, फिर इसके पास ले गए, कम से कम इन दोनों में से एक से रिपल्सन जरूर था. या तो वो इसे रिपेल करती थी या इसे रिपेल करती थी. तो दैट मीन्स कि या तो वो चार्ज इसके जैसा था, इसके जैसा था. वी डिड द एक्सपेरिमेंट विथ सो मेनी थिंग्स बट नेवर गॉट टू नो, नेवर फाउंड दैट कि उस थर्ड मटेरियल ने इसे भी अट्रैक्ट किया और इसे भी अट्रैक्ट किया. दैट मीन्स व्हाट? इट प्रूव्स द फैक्ट दैट देयर इज नो थर्ड काइंड ऑफ चार्ज. तो जैसे आपके अगर स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये लिखने के लिए आता है कि प्रूव दैट देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस, सो यू हैव टू डू दैट फ्रॉम द बिगनिंग. मतलब पहले आपको वही 2 ग्लास रॉड्स रब विद सिल्क क्लॉथ रिपल्सन हुआ, फिर 2 एबोनाइट रॉड रब विद द कैट फर रिपल्सन हुआ, फिर एक सिल्क क्लॉथ, एक वो ग्लास रॉड, एक एबोनाइट रॉड अट्रैक्शन हुआ. तो उसे आपको बताना कि सिमिलर चार्जेस में रिपल्सन और डिसिमिलर चार्जेस में अट्रैक्शन हुआ. तो उसे 2 टाइप के चार्जेस हो गए. इसके बाद फिर आपको ये दिखाना होगा कि जब हमने ऐसे 2-4 रॉड्स याली रखी and we brought any third material rubbed with anything else, we never noticed that that third material attracted both the rods simultaneously. It means it either repelled this or repelled this. That means that material, whatever it was either this kind of charge or this kind of charge. So there are only 2 kind of charges. Okay, so एक तो आपका ये कंक्लूजन हुआ. अब तो इसका नाम पॉजिटिव और इसका नाम नेगेटिव रख दिया गया विदाउट when the like electrons and protons were discovered. ठीक है ना. सो अब दूसरी चीज मैंने यहां पे की, there are only 2 kind of charges. There are only 2 kind of charges. और उनका जैसे कि बताया नाम रख दिया गया. One is what? Positive and the other is what? Negative. So पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे. और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. ठीक है ना. अब देखो, अपॉन द आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दिस थ्योरी ऑफ कि हाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चीज़ें समझाना बहुत ईजी हो गई. हुआ क्या? आई एक्सप्लेन यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि कैसे अट्रैक्शन हुआ, कैसे रिपल्सन हुआ. आपने जब ग्लास रॉड को रब किया कैट फर से, ठीक है ना, ग्लास रॉड को कैट फर से रब किया, तो होता क्या है कि यू नो द फैक्ट दैट कि इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स हैव द पॉजिटिव चार्ज. सो दैट मीन्स कि डेफिनेशन वाइज देखो क्या हुआ. डेफिनेशन वाइज अगर देखो तो ये हुआ कि ये नहीं कि ऐसा नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है, बल्कि जिसका नाम हमने नेगेटिव चार्ज रखा था, बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तो पता लगा जिसका नाम नेगेटिव रखा था वो चार्ज किसके पास था? इलेक्ट्रॉन्स के पास था. और जिस चार्ज का नाम पॉजिटिव रखा था वो चार्ज किसके पास है? वो चार्ज था प्रोटॉन्स के पास था. ठीक है ना. आप देखो इस मॉडर्न थ्योरी ऑफ एटॉमिक फिजिक्स से हुआ ही कि ग्लास रॉड को जब आपने सिल्क क्लॉथ से रब किया तो रबिंग से हीट जनरेट हुई और उस हीट ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड के और कुछ सिल्क क्लॉथ के सरफेस पे ला दिए. मतलब एटम से निकाल के इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कुछ सरफेस पे आ गए. जब आपने सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से अलग किया तो सिल्क क्लॉथ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी कंपेयर टू व्हाट? ग्लास रॉड. तो जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आए थे उनमें से मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वर कैरीड बाय व्हाट? सिल्क क्लॉथ. तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स नाउ ग्लास रॉड के पास क्या हुआ? इट हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन्स देन द न्यूट्रलिटी. न्यूट्रलिटी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते और जितने प्रोटॉन्स थे, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर न्यूट्रल में इक्वल होता है. अब इसके कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? सिल्क क्लॉथ के पास चले गए. दैट मीन्स कि सिल्क क्लॉथ क्या होगी? नेगेटिवली चार्ज हो गई और ग्लास रॉड क्या होगी? पॉजिटिवली चार्ज हो गई. दैट मीन्स कि ये केवल ग्लास रॉड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता. आप ग्लास रॉड को किसी ऐसे मेटेरियल से रब कर देते जिसके कंपैरिजन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्लास रॉड के रेस्पेक्ट में कम होती, तो जब आप रब करते सरफेस पे दोनों के रबिंग से इलेक्ट्रॉन्स आते. अब क्योंकि उस मेटेरियल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती तो उसके पास क्या होता? कम इलेक्ट्रॉन्स आते. उसके पास कम इलेक्ट्रॉन्स आते और ग्लास रॉड के पास क्या होता? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते. ग्लास रॉड के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले जाते. तो ग्लास रॉड क्या हो रहा था? पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज. और वो जो मटेरियल होता वो क्या हो रहा था? वो ये नेगेटिवली चार्ज और वो पॉजिटिवली चार्ज. मतलब न्यूट्रलिटी में दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल हैं. आपने रबिंग से क्या हुआ? हीट जनरेट हुई और कुछ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के सरफेस पे आ गए. अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा. मतलब जितने उसने कॉन्ट्रीब्यूट किए थे उससे भी ज़्यादा ले गई.
और वो नेगेटिवली चार्ज हो गई, और दूसरे वाले के पास क्या हुआ, जितने उसने कंट्रीब्यूट किए थे उतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास वापस नहीं पहुंचे, दैट मीन्स कि वो क्या हो गया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आप समझ गए इस बात को, ठीक है। सो नाउ सी, अब आप देखोगे तो तुम्हें ऑन द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये बात समझ में आ गई कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेवलप कैसे होता है। ऐसा कुछ नहीं कि किसी मटेरियल में बिल्कुल फिक्स कर दिया कि इसके पास हमेशा पॉजिटिवली चार्ज ही डेवलप होगा, नेगेटिवली चार्ज, वो डिपेंड करता कि आपने उसकी रबिंग किससे की है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल से की है या उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मटेरियल से की है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। तो कंक्लूजन इज व्हाट, दो टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट। अब चार्ज की इन प्रॉपर्टीज के अलावा एक और प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज व्हाट, इट इज की चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो तुम देखो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मीनिंग क्या हुआ। सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन का मतलब हुआ कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, और जब आप उसकी क्वांटिटी वैल्यू पे आते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की एक मिनिमम वैल्यू है, ठीक ना। एक मिनिमम वैल्यू, उससे और छोटी वैल्यू इसकी हो ही नहीं सकती है। और जो उसकी बिगर वैल्यूज हैं, बिगर वैल्यूज आर व्हाट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। ये जो स्मॉलेस्ट मिनिमम वैल्यू थी, जो भी उसकी बड़ी वैल्यूज हैं वो उसकी इंटीग्रल मल्टीपल है, उसके अलावा और कुछ नहीं। बड़ी वैल्यूज कोई भी हमेशा इसकी इंटीग्रल मल्टीपल में आती हैं, और कोई वैल्यू नहीं आती तो हम बोलेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, ये फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज्ड है। आप समझ गए। तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटाइज्ड होती हैं कि उनकी एक सर्टेन वैल्यू होगी, उससे और छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो उनकी बड़ी वैल्यूज हमें मेजरमेंट में मिलती हैं, वो एग्जिस्टिंग वैल्यूज जो उनकी मिलती हैं, वो वैल्यू हमेशा उस छोटी वाली क्वांटिटी का एक इंटीग्रल मल्टीपल मिलती हैं। हम क्या बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ठीक है ना। तो ऐसा ही चार्ज के लिए हुआ। चार्ज के लिए क्या देखा गया कि जो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या मिला, उन एक्सपेरिमेंट्स में मिला कि चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, वो क्या मिली, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज ये मिला। और पॉजिटिव चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या मिली, द मिनिमम, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या मिली, ये मिली जो पॉजिटिव चार्ज की मिनिमम वैल्यू है वो मिली चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हाट, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस E, ठीक है। दिस वाज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इससे छोटा चार्ज नहीं होता है। आप अभी जो एक्सपेरिमेंट किए उसे समझ भी गए होंगे। आप समझ गए, जब आपने रबिंग की तो आप एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में कम से कम आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, उससे कम तो नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट ट्रांसफर 0.5 इलेक्ट्रॉन, यू कैन नॉट ट्रांसफर 0.2 इलेक्ट्रॉन। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया उसके पास चार्ज क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का नेगेटिव चार्ज। और जिस चीज़ से ट्रांसफर हुआ उसके पास चार्ज कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स एक प्रोटॉन के बराबर का चार्ज। अब या तो आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे, या दो करोगे, या तीन करोगे, तो जो कोई भी चार्ज नेचर में मिलेगा वो क्या होगा, Q प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा और स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल मिलेगा। मैं बाद में आपसे बताऊंगा, अभी बिकॉज माई डिस्कशन विल गो ऑन फॉर द लॉज रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, उसमें आएगा। बाद में मैं आपको बताऊंगा क्वार्क्स के बारे में, कि जैसे बाद में डिस्कवरी में पता लगा कि एक प्रोटॉन है
वो कुछ क्वार्क से मिलकर बना, अप क्वार्क एंड द डाउन क्वार्क। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन है वो भी क्वार्क से मिलकर के बना है, तो कितने अप क्वार्क कितने डाउन क्वार्क एसेट्रा आई टेल यू लेटर ऑन। बट जनरली क्या है, इन जनरल जब भी आपका कोई केमिकल रिएक्शन है उनमें क्या होगा, जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में करते हो तो आपको क्वार्क्स का इंट्रोडक्शन मिलेगा, बट क्वार्क्स रिलेटेड कोई कैलकुलेशंस अभी नहीं आएंगे। वो अभी आपको यही लेना है कि सबसे छोटा चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और बाकी जो बड़े चार्ज हैं उसके इंटीग्रल मल्टीपल में है। ठीक है, दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जैसे मैंने चार्ज को क्वांटाइजेशन बताया, वो लोग आपसे और भी किसी फिजिकल क्वांटिटी के क्वांटाइजेशन के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको चेक करना आना चाहिए। कैसे चेक करोगे आप? सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या इस फिजिकल क्वांटिटी की एक मिनिमम एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उससे और छोटी वैल्यू कोई नहीं होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो उसकी बड़ी वैल्यूज़ होंगी क्या वो सबसे छोटी वैल्यू की इंटीग्रल मल्टीपल में है। अगर वो जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उस सबसे छोटी वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में हैं तो दैट मीन्स कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्वांटाइज। जिसमें आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 11th क्लास में आपने केमिस्ट्री में किया द एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए आपने किया, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम। तो आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होती थी, मे बी फॉर द हाइड्रोजन एटम इफ यू रिमेंबर इट वॉज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होती थी दैट वाज -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एटम के अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम नहीं हो सकती है, वो एक मिनिमम वैल्यू हो गई। और जो उससे बड़ी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, -13.6 अपॉन 4 या -13.6 अपॉन 9, उसके बीच में कोई वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। तो व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम गेट्स द क्वांटाइज्ड वैल्यू। मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आप बोले कि एनर्जी इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, एनर्जी इज नॉट क्वांटाइज्ड। वही इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर कितनी भी एनर्जी हो सकती है उसकी, पर जब वो एटम के अंदर होगा तो क्या होगा, उसका एटम के अंदर उसकी जो एनर्जी होगी उसकी क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी है, सेकंड ऑर्बिट में इतनी है, थर्ड ऑर्बिट में इतनी है, और उसके बीच की वैल्यू की एनर्जी वो कभी इलेक्ट्रॉन ले ही नहीं सकता जब वो एटम के अंदर है। दिस इज द वे वी डिस्कस द क्वांटाइजेशन। इज दैट क्लियर? अब एक चीज़ और भी देखो, जैसे चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है ये काफ़ी छोटा होता है। यू नो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। ये जो कूलम है COULOMB, कूलम इज द COULOMB, कूलम इज द MKS और SI यूनिट ऑफ चार्ज। MKS और SI यूनिट ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज कितना होता है मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये MKS और SI यूनिट चार्ज ये काफ़ी छोटा है, मतलब इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। तो फिर हम एक दूसरे वे में बात करते हैं कि चार्ज का जो क्वांटाइजेशन है, वी डिस्कस दैट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल एंड एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ नोट कर लेंगे। आप नोट करेंगे क्या कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। जब आप बहुत छोटे छोटे अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करेंगे ना, जैसे चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 50 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो चार्ज क्वांटाइज्ड है। लेकिन हम बहुत बड़ी क्वांटिटी की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1 कूलम। यू सी 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम काफ़ी बड़ा चार्ज है। हाउ कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अपॉन 1.6 × 10⁻19, सो दैट बिकम्स आउट 1/1.6 × 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। या फिर आप करो, ये हो गया आपका 100/16 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। सो देखो हुआ क्या, मान लीजिए इसकी बात करूँ तो ये आ गया आपका 6 पॉइंट और 2 समथिंग 10⁻19। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये गलत है। ये जो एक कूलम चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डेसिमल में आ रहा है। सो दैट मीन्स कि ये चार्ज तो 1 कूलम चार्ज एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। लेकिन फिर भी क्या होगा, जब फ्यूचर में बात आएगी कि एक कूलम चार्ज, तो यहाँ पे हम इतने बड़े चार्ज के साथ क्वांटाइजेशन लगाना वो सुटेबल नहीं है, मतलब दैट कैन बी स्पोकन ऑफ।
मतलब बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज। हाउ? जैसे ये इंटीग्रल मल्टीपल में होने के लिए ये 6.2 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स हुए। दैट मीन्स व्हाट कि 6 इंटू 10⁻19 कूलम्स इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे हो गए। उसके बाद इसे इंटीग्रल मल्टीपल में होने के लिए कितना और चार्ज, 1 कूलम चार्ज को कितना और चार्ज चाहिए कि वो एग्जैक्टली इंटीग्रल मल्टीपल में हो जाए? बहुत छोटा सा चार्ज चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा, ठीक है ना। अल्टीमेटली इस चार्ज में इंटीग्रल मल्टीपल होने के लिए जो चार्ज है ये, इस चार्ज को इंटीग्रल मल्टीपल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज की जरूरत है। इज दैट क्लियर? तो दैट मीन्स कि जब आपसे बोला रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तो जनरली क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक कंटिन्यूअस मैनर में होगा। बोला गया एक स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज है, तो चार्ज क्या होगा, हम उसे एक डिस्क्रीट मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं मानते, हम मानते क्या हैं, वो कंटिन्यूअस मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब व्हाट, जैसे हुआ कि आपने बोला कि एक कंटेनर में 100 बॉल्स रखी हैं, तो एक बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, एक क्वांटाइज मैनर में हो गया। और वही चीज़ हो कि आपको बॉल का साइज़ बड़ा है, आपको जैसे बहुत जो छोटे वाले सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के बारे में बोल दिया जाए। बोला एक कंटेनर में, एक बकेट में कुछ अमाउंट ऑफ सैंड है, तो 1 kg सैंड, 2 kg सैंड। अब सैंड के एक पार्टिकल का वेट किया गया और सारे पार्टिकल्स मानो सैंड के एक जैसे हैं, तो हो सकता कि वो इंटीग्रल मल्टीपल जब आप उस सैंड के एक पार्टिकल का करो तो 1 kg 2 kg के ऑर्डर में नहीं आए, ठीक है ना। तो ये हो गया कि वो हम जब बोलते हैं 1 kg बड़ा अमाउंट जब बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 1 kg सैंड है, 2 kg सैंड है। वी नेवर बॉदर अबाउट द फैक्ट कि वो एक सैंड के पार्टिकल का इंटीग्रल मल्टीपल में आ रहा है नहीं आ रहा है। अरे फर्क होगा तो कितना होगा, एक सैंड के पार्टिकल से भी तो कम फर्क होगा। अगर मान लो कि इंटीग्रल मल्टीपल नहीं बन रहा है तो फर्क कितना होगा, एक जो सबसे छोटा सैंड का पार्टिकल है उस सैंड के पार्टिकल के मास से छोटा फर्क होगा। सो उस बड़े मास के कंपैरिजन में वो छोटा मास जिसका फर्क है आप उसे इग्नोर कर सकते हो। सो द सेम थिंग इज ट्रू फॉर द चार्ज ऑल्सो। तो आप इस फैक्ट को नोट कर लोगे कि चार्ज इज द कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, बट चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्वांटिटी एट व्हाट, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। वो तब तक मैटर करता है जब आपके पास 100, 200, 2000, 1500 इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर का चार्ज है, जब बहुत ही जैसे बहुत बड़ा अमाउंट 10⁻19 इज व्हाट, इट्स अ बिग अमाउंट, 10⁻18 इज अ बिग अमाउंट। तो ऐसे केस में चार्ज इज व्हाट, ऑलमोस्ट ए कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? नाउ सी, नाउ आई डिस्कस द कूलॉम्स लॉ। सो सी द कूलॉम्स लॉ। तो देखो कूलॉम्स लॉ क्या हुआ, कूलॉम्स लॉ है कि आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 कूलॉम्स में, और इनके बीच का सेपरेशन है R, स्मॉल r। तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स डिपेंडिंग अपॉन के पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, वो होगा दैट विल बी व्हाट, प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, ये चार्जेस कैसे हैं, दे आर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब कि बहुत छोटे चार्जेस हैं। जैसे बोला जाए एक रॉड के ऊपर चार्ज, दूसरी रॉड के ऊपर चार्ज, तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स, उनके रिपल्सिव फोर्स उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शन है। नो, नॉट दैट, ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए। सो द लॉ बिकम्स कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ इज दैट द अट्रैक्टिव और द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम इसे बोलते हैं फिर इस तरीके से कि फोर्स F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट स्मॉल के, ये स्मॉल के है, बाद में मैं कैपिटल के भी यूज करूंगा, इस स्मॉल के इंटू व्हाट, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। सो इस कांस्टेंट के की वैल्यू जब हमने मेजर की प्रैक्टिकली, तो कांस्टेंट के की वैल्यू आई 9.0 इंटू 10⁹, और यूनिट आप यहाँ से के की लिख लोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस कांस्टेंट के की वैल्यू कब, जबकि चार्जेस कहाँ पे हैं, ये के की वैल्यू है व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम। जब चार्जेस वैक्यूम में हैं तो कांस्टेंट के की वैल्यू आई, ठीक है ना। ये लॉ अभी मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, वो आपको चार्जेस को देख करके बताना पड़ेगा। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी फिजिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन
जब भी आप कोई फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं तो एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में भी होना चाहिए, बट अभी मैंने स्केलर फॉर्म में था। आई टेल यू कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। नाउ से अब मैं इसी को थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखता हूँ। फोर्स F इक्वल्स टू जो कॉन्स्टेंट K था, वी कैन राइट दैट 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। उसी कॉन्स्टेंट K को हमने लिखा 1/4πε0। अच्छा, उसके पहले मैं तुम्हें जैसे इस लॉ के बेसिस पे मैं तुम्हें 1 कूलम चार्ज बताऊं कि 1 कूलम चार्ज होगा क्या, 1 कूलम चार्ज। तो देखो 1 कूलम चार्ज क्या होगा, मैं इसकी वैल्यू भी 1 कूलम, इसकी वैल्यू भी 1 कूलम और ये 1 मीटर ले लेता हूं, तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, 1 हो गई। और ये है 9 × 10⁹, तो दैट मीन्स की फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 9 × 10⁹ आ गई। दैट मीन्स कि आप क्या सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज द charge which if separated by another same amount of point charge repel it with a force of which if separated by another same amount of charge by 1 meter repel it with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन्स। आप समझ गए कि 1 कूलम चार्ज, तो आप समझ सकते हो 1 कूलम चार्ज काफ़ी बड़ा चार्ज है। अगर ऐसे दो चार्जेस 1 मीटर से सेपरेटेड हों तो जब उनके बीच में फोर्स 9 × 10⁹ कूलम लगे तो आप वो दोनों चार्जेस सेम थे, 1 मीटर से सेपरेटेड है। अगर रिपल्सिव फोर्स इतना हुआ तो आप बोलोगे वो चार्जेस कितने हैं, 1 कूलम के चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस हैं 1 कूलम ईच। इज दैट क्लियर? नाउ से आप देखोगे तो इस एक्सप्रेशन को होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। अब मैं इस चीज़ को देखो आगे करता हूँ। मैंने इस कांस्टेंट K को, जो कांस्टेंट K था 1/4πε0 के फॉर्म में लिखा, 4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम। ये चार्जेस अभी वैक्यूम में थे, ये एक्सप्रेशन कब क्यों है, व्हेन चार्जेस आर इन वैक्यूम, कोई मीडियम नहीं है, चार्जेस कहाँ पे वैक्यूम में हैं, तो उनके बीच में जो होगा फोर्स ये होगा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, राइट। और जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, आप 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इक्वल टू 9 × 10⁹ डाल दोगे, उससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रहेगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रहेगी 8.67 × 10⁻12, ठीक ना। और यह रहेगा आपका, इसका यूनिट जो होगा उसी का रेसिप्रोकल। अभी आपने K का यूनिट क्या निकाला था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ रहेगी, जो कि इस वाले इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी परमिटिविटी का मतलब क्या है मैं भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नाउ से फर्दर वी डिस्कस इट। आपने वैल्यू नोट कर ली होगी। नाउ से आप देखो, अब मान के हमने चार्जेस को मीडियम में रखा, मीडियम में चार्जेस के बीच का फोर्स है F' 1/4πε0, और यहाँ पे एक कांस्टेंट K लगाना पड़ता है। ये कैपिटल K है, वहाँ पे जो कांस्टेंट K था स्मॉल k था, इंटू वॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो चार्जेस हैं दे आर इन वॉट, ये एक मीडियम के अंदर है, मतलब ये चार्जेस मीडियम में हैं, तो फोर्स F'। अब यहाँ पे जो कैपिटल K है, दिस कैपिटल K इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिखते हैं, F' इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई वॉट आर स्क्वायर, ठीक है, एप्सिलॉन। और जो एप्सिलॉन है यहाँ पे, जिस एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये मीडियम की परमिटिविटी है, ये मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दो बोर्ड एग्जाम्स के लेवल पे आपको समझना है, और अदरवाइज भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम डिफाइन कैसे करते हैं,
डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से F अपॉन एफ डैश। मैं इस इक्वेशन में इसे डिवाइड करूंगा, सब कुछ कर जाएगा, ये K ऊपर आ जाएगा K। सो दिस व्हाट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस when they are in vacuum to that in that medium is called dielectric constant of the medium। ठीक है ना, आप इसे नोट कर सकते हो। What? The ratio of the forces between the two charges when the charges are in vacuum to that when they are in the medium। मतलब जब वो चार्जेस वैक्यूम में हैं तो जितना फोर्स है अपॉन जब वो चार्जेस मीडियम में हैं तो जितना फोर्स होगा। आप इसके रेशो को क्या बोलते हो, आप इस रेशो को बोलते हो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ऑफ द मीडियम। इज दैट क्लियर? से डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हुआ, लेकिन अभी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं तुम्हें और भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली जैसे आपने तो फोर्स के रेशो से बता दिया, बट फंडामेंटली ये किस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी है, आई टेल यू दैट इन फ्यूचर। ठीक है ना, ऐसे ही जैसे परमिटिविटी है, परमिटिविटी जो हो गई मीडियम की, दैट इज व्हाट परमिटिविटी इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो तुम देखो यहां पे कि परमिटिविटी जो फ्री स्पेस की है वो एक तरीके से एक कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये कांस्टेंट है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। द रीजन बीइंग वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसकी? तो जब वैक्यूम की बात आती तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, जिस कांस्टेंट की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई। और जब बात आएगी परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, तो क्योंकि मीडियम में मॉलिक्यूल्स हैं, ये उन मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम की प्रॉपर्टी है, परमिटिविटी प्रॉपर्टी है। अब मैं इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। मैं ब्रीफ में पहले इसकी वैल्यूज बता दूं कि इसकी वैल्यूज क्या आती हैं। यू विल सी दिस, मैं इसे रब कर रहा हूँ, लुक एट दिस। कुछ एक मटेरियल्स के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K की वैल्यू बता रहा हूँ। K इक्वल्स टू 1 फॉर व्हाट, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, वैक्यूम के लिए 1। K इक्वल्स टू 81 फॉर द वाटर, आप नोट कर लोगे। K is less than 30 but greater than 20 for the semiconductors, and K is equal to infinity for the metals, metals that is what conductors। ठीक है ना, metals that is what conductors के लिए K infinity है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं फॉर द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ठीक है ना, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली होता क्या है। यू विल सी दिस। जैसे होता क्या कि फ्यूचर में व्हेन आई टेल यू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा बताने नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी सी ज़रूरत इसलिए बता रहा हूँ। तो होगा क्या, किसी भी चार्ज से कुछ इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स हम मानते हैं कि बाहर आती हैं। दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जैसे हो रहा है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से इतनी दूर है, इसके बावजूद भी अट्रैक्शन या रिपल्सन है। द चार्जेस आर नॉट फिजिकली टचिंग ईच अदर, स्टिल देयर इज अट्रैक्शन और रिपल्सन। So what from what charge goes to the other charge that it repels or it attracts। तो हम बोलते क्या हैं, इस चार्ज से इसकी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और दूसरे चार्ज से उसकी लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आई, और इनकी लाइंस ऑफ फोर्स में इंट्रैक्शन होता है। तो कूलॉमिक अट्रैक्शन और रिपल्सन इज बिकॉज ऑफ व्हाट, द इंट्रैक्शन बिटवीन देयर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट अभी आप नोट क्या कर सकते हो, एक सेंटेंस आप नोट कर सकते हो। द कूलॉमिक अट्रैक्शन और रिपल्सन इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ द टू चार्जेस। दो चार्जेस की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से कूलॉमिक अट्रैक्शन या कूलॉमिक रिपल्सन जनरेट होता है। आप समझ गए इस बात को? ठीक है, अब आप देखो नाउ से, तो कूलॉमिक अट्रैक्शन और कूलॉमिक रिपल्सन का पता लगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। अब देखो होता क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज रखा, ये मटेरियल इसके अंदर एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं। तो हम देखते हैं क्या कि जब आप किसी चार्ज के पास में किसी मटेरियल को रखते हो तो मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड, मतलब व्हाट, इसका नेगेटिव चार्ज इसके थोड़ा सा करीब आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थोड़ा सा दूर चला गया। जितना नेगेटिव, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल ही रहेगा, जितना नेगेटिव चार्ज है उतनी पॉजिटिव चार्ज है, बट इसे हम बोलते हैं कि मटेरियल पोलराइज हो गया। मटेरियल पोलराइज हो गया और बाद में मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स दूर जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के लाइंस ऑफ फोर्स पास आती हैं। तो अब देखो होगा क्या कि अगर ये मटेरियल पोलराइज हो गया, इसकी लाइंस ऑफ फोर्स इस ओर जा रही हैं और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स इस ओर गई, तो इस मटेरियल के अंदर नेट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो जाएंगी, कुछ कम हो जाएंगी।
इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स कम हो जाएंगी, और अगर इस मेटेरियल के अंदर आपने चार्ज रखा होता तो लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से ही फोर्स है, तो फोर्स का अमाउंट भी क्या हो जाता, कम हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलराइजेशन हुआ, अच्छा पहले पोलराइजेशन के एक्सटेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो देखोगे तुम, जैसे आपने यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रखा, 10 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 कूलम चार्ज रखा आपने, तो यहाँ पे जो पोलराइजेशन होता है, जो चार्ज डेवलप होता है, ये कभी भी -10 और +10 से बड़ा नहीं होगा। अगर आपने 12 रखा तो बस मैक्सिमम होगा -12 +12, या उससे कम होगा, -5 +5 हो जाएगा, -4 +4 हो जाएगा, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, और होगा हमेशा इक्वल और अपोजिट। और तुम देखो जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होंगी, तो नेट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या बचेंगी, कम बचेंगी। जब नेट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स कम बचेंगी तो जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो भी कम लगेगा। मैं रिपीट करता हूँ, आप ठीक से सुनो, कि जो पोलराइजेशन होगा, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, मतलब कितना ज़्यादा नेगेटिव और कितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट कभी भी इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। अगर जितना ये चार्ज है उतना ही चार्ज एग्जैक्टली डेवलप हुआ, जैसे +20 -20 +20, इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट पोलराइजेशन। एब्सोल्यूट पोलराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन व्हाट, मेटल्स। मेटल्स में एब्सोल्यूट पोलराइजेशन, तो जब 20 कूलम यहाँ पे है -20 +20, तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स इस ओर आ रही उतनी लाइंस ऑफ फोर्स इस ओर आ जाएंगी, और इसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स क्या बचेंगी, 0। जब कोई लाइंस ऑफ फोर्स नहीं बचेंगी तो यहाँ पे कोई चार्ज रखोगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0। ठीक है ना। अब मैं आपकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की डेफिनेशन से इसे रिलेट करता हूँ। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले में क्या था, फोर्स F डैश वॉज इक्वल टू 1/4π ε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², और यहाँ पे था कैपिटल K। तो तुम देखो अगर फोर्स हमें 0 चाहिए तो K क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। दैट मीन्स कि एब्सोल्यूट पोलराइजेशन मेटल्स के केस में हुआ, और मेटल्स के केस में क्या हुआ, K इनफाइनाइट हो गया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जब आप किसी मटेरियल को चार्जेस के बीच में रखते हो, मतलब मटेरियल कहाँ पे, जहाँ पे चार्जेस हैं, फ्यूचर में हम इस चीज़ को कैसे बोलेंगे, एक मटेरियल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, चार्जेस से उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो दैट मीन्स कि मटेरियल को कहाँ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड, मटेरियल पोलराइज हो जाता है, और जो मटेरियल जितना ज़्यादा पोलराइज होगा हम बोलेंगे उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या है, उतना ज़्यादा है। दैट मीन्स कि आप नोट क्या कर सकते हो, दूसरे वर्ड्स में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज द एक्सटेंट अप टू विच इट गेट्स पोलराइज्ड व्हेन केप्ट इनसाइड द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, मैं रिपीट करता हूँ, आप नोट करेंगे कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल इज द एक्सटेंट अप टू विच ए मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड व्हेन केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने से मटेरियल जितना ज़्यादा पोलराइज होगा उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। समझ गया आप इसे। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन आपने लिखी कि व्हेन ए मटेरियल इज केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट्स पोलराइज्ड, एंड द एक्सटेंट अप टू विच इट गेट्स पोलराइज्ड इज ए मेजर ऑफ व्हाट, इट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन होगा तो हम बोलेंगे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा है, कम पोलराइजेशन होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, छोटा है। तो मेटल्स में एब्सोल्यूट पोलराइजेशन होता है, और मेटल्स के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K क्या हो गया, इन्फिनिटी। वैक्यूम में जब मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो पोलराइजेशन कहाँ से होगा, पोलराइजेशन उस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एटम से सेपरेट होने की फिनोमेना नहीं तो हुई, तो जब वहाँ पे एटम्स ही नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं होगा। तो वैक्यूम में जहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं होता है हम उसे के लिए K क्या बोलते हैं, K बोलते हैं उसके लिए 1। तो एक तरीके से जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात जब हम वैक्यूम के लिए करते हैं तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गया जिसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। बाकी जब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी मटेरियल के लिए बात करेंगे तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इट विल बी अ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात आई परमिटिविटी की। इसी इक्वेशन को आपने लिखा F डैश इज इक्वल टू व्हाट, 1/4π एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2/r²। तो देखो हम इसे थोड़ा सा क्वांटिटेटिव फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड ज़्यादा डेवलप हुई, तो नेट फील्ड इस ओर की क्या हो गई, कम हो गई। जैसे इस ओर 10 लाइंस ऑफ फोर्स आ रही थी इस चार्ज की वजह से पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन में अपोजिट डायरेक्शन मानो 7 लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो गई, 7। तो नेट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्या बची, 3। सो नेट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स आर लेस। तो इफ देयर इज ए चार्ज इनसाइड इट
इट विल एक्सपीरियंस लेस फोर्स, ठीक है ना। तो उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ज़्यादा होगा, या हम बोलेंगे कि परमिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो परमिटिविटी को हम लाइंस ऑफ फोर्स के टर्म्स में ऐसे बोल सकते हैं, जैसे पहले 10 लाइंस थी, हमें से मतलब नहीं कि इस ओर डेवलप हुई, इस ओर डेवलप हुई, हमने नेट बोला। अल्टीमेटली नेट कितनी लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट है, 3। तो हम बोलेंगे क्या, मोर लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट इन साइड द मटेरियल। इस मटेरियल के अंदर ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रही है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रही है। और जो मटेरियल अपने अंदर लाइंस ऑफ फोर्स के पेनिट्रेशन को जितना ज्यादा अपोज करेगा, हम बोलेंगे उसका परमिटिविटी उसकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, वहां पोलराइजेशन ही नहीं होगा, तो वहां परमिटिविटी कुछ नहीं। तो वैक्यूम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, कांस्टेंट, दैट इज व्हाट 1। तो वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। अब परमिटिविटी ऑफ मटेरियल को आपने डिफाइन कैसे किया, आप नोट कर सकते हो। परमिटिविटी ऑफ ए मटेरियल is its ability to oppose the penetration of electric lines of force inside it। ठीक, एक मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पेनिट्रेशन को जितना ज़्यादा अपोज करेगा, उसकी परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक ना। सो मोर इज द परमिटिविटी, मोर विल बी द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या वाइस वर्सा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसकी परमिटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और उसके अंदर लाइंस ऑफ फोर्स, जो नेट लाइंस ऑफ फोर्स प्रेजेंट होंगी, उनका नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। सो दिस वाज अबाउट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द परमिटिविटी। अब आप देखोगे, मैं इसी कूलम्ब्स लॉ को फॉर द पॉइंट चार्जेस आई राइट इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक ना। कूलम्ब्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म। तो तुम देखोगे वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ कैसे होगा। आपने मान लो ये कार्टेशियन सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, q1 चार्ज और इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर r1 और चार्ज q2 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है। और मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स लिखना है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे लिखना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है ना। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू व्हाट, 1, 2 के ऊपर फोर्स बिकॉज ऑफ 1। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप देखोगे, मान लो जैसे मैंने माना कि ये वेक्टर r1 है, पोजीशन वेक्टर आप जानते ही हो। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कराते हैं तो जो वेक्टर बनता है दैट इज व्हाट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। सो r1 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऐसे ही इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कराया, r2 इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अदर फ्रॉम द लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स, अगर ये वेक्टर x है, जीरो वेक्टर है ना, x है, सो वेक्टर r1 प्लस वेक्टर x इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर r2। this vector plus this vector is equal to what, this vector। so vector x is equal to vector r2 minus vector r1, ठीक है ना। ये वेक्टर x आया। अब आप फोर्स में यहाँ मैग्नीट्यूड होगा इसका x का स्क्वायर, सो दैट इज व्हाट, वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में है और अभी ये स्केलर एक्सप्रेशन है, तो वी नीड कि ये वेक्टर फॉर्म में आ जाए। अब देखो, इसके वेक्टर फॉर्म में आने के लिए अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फोर्स का डायरेक्शन इसके ऊपर इस ओर होगा, यानी वेक्टर x के लॉन्ग। तो हम करेंगे क्या, यूनिट वेक्टर x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर x से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, डायरेक्शन इस ओर आ रहेगी फोर्स की, और मैग्नीट्यूड तो इसका 1 है, तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा। सो दिस बिकम्स F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन व्हाट, ये R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और नीचे आ जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 मैग्नीट्यूड। सो दैट बिकम्स फोर्स F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 होल क्यूब। आप समझ गए इसे। अब मैं तुम्हें देखो एक चीज़ बता दूं कि जब आप कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म में लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, R जहाँ पे दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, तो स्केलर फॉर्म में लिखने में आप चार्जेस का साइन नहीं डालोगे। स्केलर फॉर्म में लिखने में आप फोर्स का डायरेक्शन चार्जेस के अकॉर्डिंगली अलग से बताओगे, उसमें चार्जेस का साइन नहीं आएगा। लेकिन जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में ये तो होगा कि इस स्टेप तक हम पहुंचे कैसे, वो बताया। जब आपको वेक्टर फॉर्म में अब डायरेक्टली लिखना होगा तो आप क्या करोगे, 2 के ऊपर फोर्स 1 से लिखना है, 1/4 Q1 Q2,
यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में चार्जेस साइन के साथ, अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव होता तो नेगेटिव। मैं बताऊंगा कि नेगेटिव आने से कैसे फर्क पड़ता। अभी मान लो दोनों पॉजिटिव है और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स रखना आपको, यू वांट टू राइट फोर्स ऑन टू, तो R2 माइनस R1 डिनोमिनेटर में आएगा, वेक्टर R2 माइनस R1, और जो वेक्टर न्यूमेरेटर में आएगा उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब डिनोमिनेटर में आएगा। आप समझ गए? मतलब व्हाट, जो वेक्टर न्यूमेरेटर में आएगा R2 माइनस R1, न्यूमेरेटर में कौन सा वेक्टर आएगा? अगर आपको लिखना फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो क्या आएगा? R2 माइनस R1, राइट। और जो वेक्टर न्यूमेरेटर में आया डिनोमिनेटर में उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या आएगा? होल क्यूब आएगा। ठीक है ना? अब देखो ये पॉजिटिव, R2 माइनस R1 का डायरेक्शन इस ओर है और आपको पता है ये पॉजिटिव है तो फोर्स इसी ओर होगा। अब देखो, और मानो कि ये चार्ज नेगेटिव होता, आप लिखते तो ये R2 माइनस R1, क्योंकि आपको फोर्स इसके ऊपर चाहिए। अब ये माइनस Q1 हो जाता तो माइनस ये साइन अंदर जाता, क्या हो जाता? R1 माइनस R2। अगर R2 माइनस R1 की डायरेक्शन इस ओर है सो R1 माइनस R2 क्या होगा? इस ओर होगा, और उसकी डायरेक्शन अपने आप से क्या होती? रिवर्स हो जाती। सो दैट मीन्स व्हाट, जब वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखना तो आप चार्जेस साइन के साथ लिखोगे, और यहां पे क्या लिखोगे? जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिस चार्ज की ड्यू टू फोर्स लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जो वेक्टर न्यूमेरेटर में आया उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल क्यूब। ठीक। सो इन माय नेक्स्ट मॉड्यूल विल गो फर्दर फॉर इट, इसी चीज को कार्टेशियन सिस्टम में लिखना एंड डिटेल ऑफ इट। ओके।